مشہور ہے کہ کسی زمانے میں بغداد میں ایک ماہر بڑھائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا۔ جو بھی اس ممبر کو دیکھتا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی، اتنی پھیلی کہ بغداد میں آنے والے ہر امیر شخص اس بڑھائی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو کہ اسے فلاں مسجد کو عطیہ کر دوں گا۔ لیکن بڑھائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب سے پوچھتے کہ بھائی مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ بڑھائی سب کی باتیں سنتا، پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا بس اتنا ہی کام تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں، کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور بیت المقدس واپس حاصل کرے گا، اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گی۔ ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آنچ کی تھی۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا، اور پھر 40 برس بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا، جسے لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں کردستان میں ہوئی۔ آپ نسلاً کرد تھے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تقرید کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی کی ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا۔ آپ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بیداغ زندگی گزاری۔ ابتدا میں صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے۔ اس فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا شیر قوہ تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے، اور 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ اور پھر نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی کا مقصد اول یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے، وہی بیت المقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے۔ دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے، جسے حضرت عمر بن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد سے یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سلطنت روز بروز مضبوط ہوتی چلی گئی، اور یروشلم مسلم ثقافت اور آبادی والی شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر طواف اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اگر یہودی یا عیسائی زائرین یروشلم میں کچھ دن قیام کرنا چاہیں تو اس کی بھی انہیں اجازت ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اسلامی ریاستی سلجوق ترک کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا سلجوقوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، ورنہ ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹر نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائی اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان اور تمام بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ لہٰذا سن 1095 عیسوی میں عیسائی پوپ نے فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا۔ اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہو کر عیسائیوں کے تمام مصائب کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور، بدمعاش اور بدکردار بھی بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ اس جنگ میں 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا، لہٰذا عیسائی فوج جتھوں کی شکل میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے، مزید عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے عامل تھے،
और इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई। तकरीबन पूरा यूरोप हथियारों से लीस जोशो खरोश के साथ यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था। जब ये लोग यरूशलेम पहुंचे तो सल्जूक फौज से उनका सामना हुआ, लेकिन 40 दिनों के बाद सल्जूकों ने हथियार डाल दिए। ईसाई हमला आवर यरूशलेम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के खून से होली खेली गई। तारीखी किताबों के मुताबिक यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी थीं। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी थीं। बर्बरीत का ये आलम था कि मुसलमानों को इनके घरों की छतों से नीचे फेंक दिया जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तारीख में ऐसी जुल्म बर्बरीत कहीं देखने को नहीं मिलती। मस्जिदें मुसलमानों के खून और कटी हुई आज़ा से भरी हुई थी। 8 दिनों के इस मुहासरे में तकरीबन 60,000 मुसलमान कत्ल किए गए। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पूप को ये खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और हमने मुसलमानों का ऐसा खून बहाया है कि जब हम हज़रत सुलेमान की इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमारे पाँव मुसलमानों के खून में धंसे हुए थे। यरूशलेम पर ईसाइयों के कब्ज़े के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमज़ोर था कि कुछ ना कर सकता था। जल्द ही यरूशलेम पर कब्ज़ा करने वाले ईसाई फ़ौज को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फ़िलिस्तीन, शाम और अर्दन के इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जहां बेदरीग मुसलमानों का कत्ल आम हुआ। औरतों की इस्मत दरी की गई और तराबलस में मुसलमानों की इस अजीम लाइब्रेरी को जला दिया गया, जहां फ़लसफ़ा और साइंस के मौज़ूआत पर तकरीबन 19 लाख किताबें मौजूद थीं। लेकिन हर अरूज को एक दिन ज़वाल है, लिहाजा हालात ने इस वक्त करवट ला जब सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी मिस्र के हाकिम बने। सन 1186 ईस्वी में ईसाइयों के एक फ़ौजी जत्थे ने रेजनालाड की रहनुमाई में मदीना पर कब्ज़े के गरज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन एक लश्कर लेकर फ़ौरन रेजनालाड के ताक़ब में निकला और हत्तीन के मकाम पर दोनों आमने सामने हो गए। लिहाजा 1187 ईस्वी को हत्तीन के उस मकाम पर तारीख़ की एक खौफनाक जंग लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने दुश्मन के लश्कर पर ऐसा आतिश गैर मादा डलवाया कि ज़मीन पर आग भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेजनालाड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। हत्तीन की खबर आग की तरह ईसाई दुनिया में फैल गई और पूरे यूरोप में सलाहुद्दीन का खौफ बैठ गया, जिसने मुट्ठी भर लश्कर के जरिया से 60,000 ईसाइयों को धूल चटा दिया था। हत्तीन की फतह के बाद सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रख किया और 1 हफ्तों तक खून रेज़ जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुक़द्दस पूरे 91 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया, लेकिन फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने कैदियों के साथ मुनसिफाना सलूक किया। आपने हर कस्म की लूट मार से लोगों को मना किया, अवाम को रोका कि शहर में मौजूद तमाम ईसाइयों को माफ़ी दे दी। रहम दिल सुल्तान ने फ़िदिया की नहायत ही मामूली रकम मुकर्रर की और जो लोग वो अदा न कर सके उन्हें बगैर अदायगी शहर छोड़ने की इजाज़त दे दी गई। सुल्तान ने जिस तरह ईसाइयों और यहूदियों से बर्ताव किया था, उसने मगरिब के लोगों के दिल जीत लिए, लेकिन यूरोप के सलीबी हाकिमों को ये शिकस्त मंजूर न थी। लिहाजा उन्होंने लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फ़ौजों पर फ़ौजें फ़िलिस्तीन रवाना हुईं। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेर दिल छलाक फ़ौज लेकर फ़िलिस्तीन पहुंच गया। मसीही दुनिया ने उससे पहले उस कदर लातेदाद फ़ौज अभी तक फराहिम न की थी। ये अजीम उलशान फ़ौज अक्का के बंदरगाह पर खड़ा था। उन्होंने अक्का को फ़तह कर लिया। अक्का की फ़तह के बाद सलीबियों ने फ़िलिस्तीन के बंदरगाह असक़लान का रख किया, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से उनका 12 मरतबा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में सुल्तान ने जवां मर्दी और बहादुरी की मिसालें पेश की, लेकिन चौंका किसी भी मुसलमान हुकूमत या ख़ासकर खलीफा बगदाद से कोई मदद न पहुंची। लिहाजा सुल्तान को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का अगला निशाना बैतुल मुक़द्दस था। ये 1190 ईस्वी में तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें सुल्तान की मुख्तसर सी लश्कर ने यूरोप के अजीम फ़ौज का बड़ी जरात मंदी से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो सलीबियों ने आखिरकार सुलह की दरख्वास्त की। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि जंग के दौरान बादशाह रिचर्ड शेर दिल और सुल्तान सलाहुद्दीन का आमना सामना हुआ तो सुल्तान के एक ही वार से रिचर्ड का घोड़ा गिर पड़ा और वो मर गया।
रिचर्ड बेबसी की हालत में खड़ा था। सुल्तान चाहता तो एक ही वार में उसका काम तमाम कर सकता था, लेकिन ये सुल्तान की आला ज़र्फ़ी थी कि एक बेबस शख्स पर हाथ उठाना उसे गवारा न किया। उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि बादशाह के खातिर एक घोड़ा लाया जाए ताकि वो घोड़े पर बैठकर मुकाबला करे। सुल्तान की उस फयाजी और रहमदिली से रिचर्ड इतना मुतासिर हुआ कि उसने लड़ने से ही इनकार कर दिया। लिहाजा रिचर्ड और सलाहुद्दीन के दरमियान महादा तय पाया, जिसके मुताबिक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में रहा और सौफ और अक्का का शहर सलीबियों को दे दिया गया और तमाम मज़ाहिब के ज़ाहिरीन को यरूशलेम आने की इजाज़त मिली। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की दावत, पुरासाइश और राहत के इंतज़ामात किए। सुल्तान का गैर मुस्लिमों से सलूक इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, और ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत ने गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। अपनी तमाम तर फतोहात और सल्तनत के बावजूद सलाहुद्दीन ने इंतहाई सादगी और फ़क्र की ज़िंदगी गुजारी। 5 अमीर तरीन सल्तनत यानी शाम, ईरान, मिस्र, हिजाज और यमन का मालिक होने के बावजूद उनका अपना कोई घर नहीं था। पूरी ज़िंदगी आम सिपाहियों का लिबास पहना ज़हद का ये आलिम था कि उनके पास कोई ज़मीन या जायदाद तक न थी। पूरी ज़िंदगी हज की तमन्ना में काट दी, मगर माली तंगी और ग़रबत ने आपको इतना मौका तक न दिया कि बीतु अल्लाह तक का सफ़र कर पाएँ। सन 1193 ईस्वी में 55 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। वफ़ात के बाद आपके घर से सिर्फ 47 दरहम बरामद हुए, जिस रकम से उनकी तदफीन तक नहीं हो सकती थी। चनांचा आपके कफन दफन के अखराजात दमशक के काजी ने अपनी जीब से अदा किए। आज वही सरजमीन शाम और सरजमीन कुद्स जहाँ पर मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये सरजमीन आज फिर से इधर उधर नज़र दौड़ाकर किसी सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार कर रही है। तमाम उम्मीदों के बावजूद भी किसी सुल्तान की आमद दिखाई नहीं देती। अल-कुद्स जो आज बदकिस्मती से पंजा यहूद में जकड़ा हुआ है, आज सुल्तान का मफतूश बैतुल मुक़द्दस यहूदी तसल्लुत में किसी सलाहुद्दीन का मुंतज़र है। लिलो नहार की कितनी गर्दिशों ने क़ब्ला अव्वल की आहो करार सनी होगी। जुल्म सितम की ये सियाह रात अब बहुत तवील हो चुकी है। सुबह उम्मीद की तलाश अब दम तोड़ने को है। गर्दिश वक्त उसी बढ़ाई और बचे की तलाश में है जो किसी मिंबर को बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करने का इरादा रखता हो।